Yeah, all right. Wonderful. That's much better. Okay. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you doing? Alhamdulillah, bilkul theek taak. Now that we are rolling on the road, so It's lovely to put a face to the WhatsApp chat and a Uh-huh. voice. definitely. I was looking forward to it. मैं तो I was pretty excited about this thing because I just randomly got the invite and I was like, oh wow, there's something that's good that's happening. Might as well just be engaged and involved. So let's see how it goes. Inshallah, definitely for the better. Chalo, very Inshallah. good. Very good. Yeah, the whole purpose of this podcast is to document for us and the homeschooling community, all the fathers and everybody who is homeschooling, and the varied approaches they use, and what Yep. works for them, and what hasn't worked for them, and what lessons we Yeah. can Yeah. foster. And also get to know each other. Yes, yes, and Wonderful. have a good Wonderful. chat. तो शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. Definitely, Ji, definitely. Go for it. So, Let's do it. Omar, why don't you just give us a little bit of a background on yourself, how you ended up here, and why you're homeschooling, and your children, and Yeah. just flow. So, हाँ जी, basically बुनियादी तौर पे तो by profession, I'll start with the boring part first. I'm an IT project manager. I've been working in the IT space for quite a while now. It's been about 15 or 16 years. मैंने मतलब इनमें से 10 साल कोई तकरीबन बाहर काम किए और इसके अलावा जो है besides my profession, I've been somebody who's been keen towards sports and athletics and extracurriculars की तरफ ज़्यादा मतलब हो रही है. Plus with the kids around, I think that activity kind of went higher on the bar. So मेरा हमेशा से एक मतलब prior to like coming back to Pakistan, so basically I lived in Pakistan in the start. मेरी परवरिश जो है वो इस्लामाबाद में, हालांकि मेरी पैदाइश बगदाद में है. Yeah, I basically मतलब my origins are from Iraq, but I've lived my entire life in Pakistan. तो लिहाजा मेरी उर्दू जो है वो आप जैसी है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. और नहीं मेरी तो बहुत टूटी फूटी है. Don't know that. No, but I try to like get the best of all languages wherever I go. मेरी अरबी भी वैसी है और मेरी अंग्रेजी भी मतलब गुजारा ही. तो वो चीजें जो हैं मतलब मेरी इसी तरह से चलते हैं. So like there was a lot of different cultures coming in together, gelling in together. मेरे घर में typically बड़ी ठेठ अरबी बोली जाती थी because my mother was a professor in Arabic. I grew up speaking Arabic, and then हमारे घर में बड़ी ठेठ पंजाबी बोली जाती थी. So I actually sometimes I very proudly claim that I'm probably the only Arab who speaks fluent Punjabi. Because there are many people from here that speak fluent Arabic. लेकिन मतलब उस साइड से जो फ्लुएंट यहाँ की मकामी ज़बानें बोलते हैं वो शायद कम है. तो इस तरह से था. प्लस मेरे कजन्स कुछ तरह मतलब बाहर के थे, जो मेरी फैमिली बाहर रहती थी, जो ज़्यादा डायस्पोरा है हमारा, वो यूएस कनाडा वगैरह इधर उधर रहते हैं. तो उनके साथ क्योंकि रहने की वजह से और ये वो अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पिकअप कर ली. प्लस यहाँ का जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है उनका ज़रा एम्फेसिस भी अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा होता है, तो हम लोगों ने उसको भी पिक कर लिया. तो कल्चरल डाइवर्सिटी थी और eventually मतलब I made up my mind back in 2000 and I think it was 12 कि जी मैंने बस बाहर जाना है, बहुत हो गई पाकिस्तान में. 2011 2012 में. तो उसमें पहले मैं यूएई गया, वहाँ पे कुछ अर्सा काम किया. कुछ अर्से के बाद मैंने मतलब I applied for Australia and then we went to Australia. My family settled down over there. और वहाँ पे जब हम लोगों ने सेटल डाउन किया, so like roughly about 10 साल वहाँ पे गुजारे. Kids and everybody, they were like getting educated over there, और मेरी वहाँ पे नौकरी चल रही थी. So yeah, I mean उसके बाद बस एक ऐसा चैप्टर जिंदगी का आता है कि जिसके बारे में you can write volumes of books about why moving
to Australia or why going overseas and then why returning. This is a topic that can take a lot of time, but long story short, we decided कि यार मतलब we go back to Pakistan, get closer to our culture, to our roots and stuff. And those are 22 के अंदर we came here and जैसे एक वो होता है आप वो स्टडी करते हैं कि यार वापस जब आ रहे होते हैं तो अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि यार आप इधर से कहाँ जा रहे हैं, लोग तो यहाँ से वहां जा रहे होते हैं और आप इधर आ रहे हैं. तो it was like it cost quite a few इंसान है आखिर at the end of the day, so it causes you to shake a bit in whatever you're thinking. So like we were like, are we doing the right thing? And then I studied quite a few people who transitioned from overseas to Pakistan. Okay. Now the biggest causes that I figured on why they actually went back to where they came from, like why they went back overseas मतलब पाकिस्तान आने के बाद वो ये था कि उनके बच्चे स्कूल्स में एडजस्ट नहीं कर पाते थे. There. नहीं मतलब यहाँ पाकिस्तान में स्कूल्स में एडजस्ट नहीं कर पाते थे. ठीक है. काफी मेरे यार दोस्त अहबाब जो हैं वो बाहर रहते थे और वो पाकिस्तान आए 2-3 साल के बाद वो वापस चले गए. So that was a challenge in its own, and I tried to figure out why that is. And एक तो मतलब आपको ही पता होगा, अंदाजा होगा कि बाहर का जो जरा schooling system है, it's a bit more practical and lighter towards kids. इतना मतलब पाकिस्तान में ना बहुत इंटेंसिव है, टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, बच्चों ने बस्ते पीछे पकड़े और लादे हुए होते हैं. इस तरह का मतलब सिलसिला वहाँ नहीं है. इस तरह का वजन या बोझ बच्चों के पर उधर वैसा उस तरीके से नहीं है. It is more practical. Having said that, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी schooling is not at the pinnacle of education. मतलब जरूरी नहीं है कि वहाँ के जो schools है ना, मतलब if you talk about getting educated, it's a pinnacle. Maybe on a scale of 1 to 10, I'd rate that schooling system at maybe 5.5. And Pakistan's schooling system at around 1 or 2. Very great, very generous you are. Yeah. Well, that's exactly how I view the schooling systems, because I mean, like at the end of the day, our transition was very organic. ठीक है, हम लोग जो है ना, we put in a lot of mind and thought to how we're going to go about this. And your children were in the public school system there or a private schooling system there? See, my kids were basically going to a public school, which was like one of the most coveted public schools over there. Okay. So we basically, lived in a suburb that was fortunately featuring on one of the highest on the Australian ATARs. तो वो schooling system तो अच्छा था, अच्छे, लेकिन वहाँ पे भी मतलब hiccups होते हैं. At the end of the day, it's a school. Yeah. And the way I eventually or we as a family, my wife and I saw it was like, हर बच्चे के अपने अपने एक drivers होते हैं, अपनी strengths होती हैं, अपनी weaknesses होते हैं, because children are eventually individuals, right? उनके learnings जो हैं वो फर्क हो सकती हैं, उनकी जो speeds हैं सीखने की वो फर्क हो सकती हैं, उनकी strengths और weaknesses अलग अलग हो सकती हैं. तो एक बेचारी टीचर या एक बेचारा टीचर जो है वो क्लास में 25 से 30 बच्चों को बिठा के जब it's very difficult to be the Pied Piper. तो एक वो factory setting is never going to give it out. अगर आपका बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा है, so the teacher will iron him or her out to make him equivalent to the others. Right. और अगर वो कम है तो बस फिर अल्लाह के हवाले, because मतलब the teacher can't pick up one student out of 30 and make the entire class come up to them. It's lowest common denominator आ जाता है ना. वो जो कम है वो तो automatically backbencher बन जाता है ना, चाहे वो brilliant भी हो. Exactly. और वो भी मतलब बेचारा backbencher ऐसा बन जाता है कि उसको अगर किसी एक सब्जेक्ट में कम हो तो वो तमाम में backbencher बन जाएगा eventually, because वो एक वो peer pressure होता है, plus स्कूल का जो एक inherent setup है ना, it's way too over competitive. मतलब यार वो मतलब because एक human nature है ना, आप 30 बच्चों को इकट्ठे जब रख लेंगे तो वो learning से ज्यादा थोड़ा सा जरा competition की तरफ भी focus पड़ जाता है ना. बिल्कुल. So how did you come to this realization कि यार ये करना चाहिए?
देखें इसमें यही था कि when we actually moved back to Pakistan, मैंने कहा कि चलो वहां पे जो वो 5.5 out of 10 की जो रेटिंग चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, वो वाली रेटिंग यहाँ ढूंढता हूँ किसी स्कूल में। अच्छा तो ठीक है। मैंने इस्लामाबाद में मेरा नहीं ख्याल कोई स्कूल छोड़ा कि जिधर मैं ज़ाती तौर पे मैं मेरी मिसेस हम लोग जाके we you know asked around parents, we spoke to the management, to the principal, vice principal, इस तरह सबसे मिल मिलाकर, and you know we just realized that it's just more commercial over here. It's like वो वाली रेटिंग जो मैंने डाउन की थी, एंड देन वी वर लाइक यार अब हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि हम लोग जाके बस हर एक स्कूल में इंटरव्यू ही करते फिरें और बच्चे जो है यार महीना गुजर गया एंड देयर जस्ट लाइक sitting and we're like what, okay, so they're doing this, how about we start teaching them ourselves. Okay. ठीक है। अच्छा जब वो वाला काम हमने शुरू किया तो आई रियलाइज माशाल्लाह मतलब विद किड्स फोर, तो हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ। आई रियलाइज कि यार एक बच्चा जहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, उसका मतलब राइटिंग में इशू हो रहा था, जब वन ऑन वन बैठे या उसकी तरफ थोड़ा सा जरा फोकस जरा दिया, तो ही इजीली गॉट ओवर इट। ठीक है, वो पीयर प्रेशर नहीं था शायद साथ, और इसी तरह मतलब जिसकी मतलब कोई स्ट्रेंथ थी उसी बच्चे की किसी चीज में, उसमें वो अपने लेवल से काफी आगे चला गया। तो देयर वाज नथिंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दैट। एंड फिर हम लोगों ने बैठ के सोचा कि यार ये तो मतलब अगर इन बच्चों को फिर हम स्कूल में रखेंगे तो जुल्म होगा, because matlab, all of this will be like taken away. We can't expect the teacher to align to their strengths and weaknesses and ignore 29 other kids, and neither can the 29 kids do that. We're like, you know what, maybe there's something that we can do to make this happen at home as well. और वहां से eventually हमारी जो है ना journey start हुई. My own nephews and my niece, they're mashallah doing pretty well. Although we were like away from them for the past 10 years, but वो भी मतलब homeschool होते हुए गए हैं. And they're doing very well in their professional lives as well. And then eventually we sat down and we were like, you know what? Maybe we need to give this a try. Maybe we need to make them lifelong learners. उनको जो है ना इस track पे चढ़ाएं and get the best out of these things. तो वहां से हमारा जो है ना ये journey शुरू हुआ. और at this stage, how old were your kids? When they actually started off with their homeschooling. Yeah. So like my eldest was 10, and and then Ibrahim was 8, Waleed was 6, and Mustafa was not in school. So basically Mustafa has never been to school. He's like started his entire journey with us. And I felt really bad about Mustafa initially. It was like, because kids tend to talk about school, or so do parents, because let's face it, 95% of the people are not homeschooling their kids, right? So 95% people are going to school. The first question they'll ask is, "Kaun se school jate ho?" And the kid would be like, "Main nahi jata." And it's like the entire, like, you guys can probably relate to it if you're homeschooling as well. तो वो लेकिन मैंने मुस्तफा को डालने की कोशिश की, एंड द सेम थिंग केम फॉलिंग डाउन अपॉन मी कि यार एक बच्चा अपनी पीक इंटेलिजेंस पे है, उसकी कंफर्ट जोन बनी हुई है कि जिस पे वो सीख रहा है. ही इज अ 5-year-old, ठीक है, ही इज कंफर्टेबल विद हिज मदर, ही इज कंफर्टेबल विद हिज फादर. That's where his learnings are going to come from. If I'm going to take him to a school, और वहां भी मैंने जाके वो boxed factory setting देखी, it's going to take it away from him for life. So I thought that this is the key moment, in fact, where children need to be probably kept away from this factory setting. So yeah, that's pretty much how we organically moved towards homeschooling. फिर उसके बाद वो self-learning or awareness शुरू हुई गया. What's the literature on homeschooling, और क्या methodologies हैं, क्या तरीक़ाकार हैं, क्या curriculums हैं. Is there a particular format that you're following, the type of homeschooling that you're following?
देखिए इसमें मतलब जनरली लोग जो फॉलो करते हैं वो मतलब एक वो अप्रोचेस हैं, मतलब दो एक स्ट्रक्चर्ड। जनरली स्कूल एट होम है जो कि बहुत ज्यादा जो हाँ नया इस तरफ आता है ना वो फॉरेन सबसे पहले वो करता है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने भी ये गलती की। मतलब मैंने शुरू में जब हम लोगों ने ये शुरू किया, लाइक ऑलराइट सो ये स्कूल मिस करेंगे। मैंने एक जनाब आला बड़ा जबरदस्त सा जो है ना वो वाइट बोर्ड लिया, फिर वो मैंने वो डेस्क खरीदे जो बच्चों के नहीं होते। मैंने कहा यार ये इधर बैठेंगे, इधर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, इधर इस तरह होगा, इधर इस तरह होगा, अच्छा मैथ्स में कोई फंसेगा, कोई साइंस में। And you know what? I was like, यार ये तो मैं स्कूल को मतलब इधर ले आया हूँ, घर के अंदर ले आया हूँ, ये तो मतलब it's like emulating the same thing. And plus then you're becoming a teacher to your child, not a parent. Right. तो वो जो है ना, eventually my wife was like, Umar, you know what? ये ठीक नहीं है. I was like, नहीं यार, this is how it's like, we're trying to school them. Like, no, you're not supposed to school them. You're supposed to unschool your mind first. Was she the primary instigator in this? Would you call her the primary instigator? I would say that yes, eventually she was the one who gave the green signal to this. I mean, like, look, we generally, मतलब हमारे तरफ से एक democratic सा setup है. So we kind of like brainstorm a lot about these things. कि यार इसमें क्या pros हैं, क्या cons हैं, what can go wrong, what looks right about this. So eventually, मतलब yes, it was her idea to say, look, I mean, like, you know, they're learning well, वो जो मेरी पहली वाली बात थी कि we realized कि यार की learnings enhance हो रही हैं and they're more comfortable. So she's like, you know, why don't we just do this? I was like, no way. I mean, like, keep kids out of school, and then she's like, no, you should read this. You should read this about homeschooling, or you know, that general literature that we have, and you know, yeah. So we went across that, and we were like, okay, we'll just, you know what, we will get onto this track, and we will try and do it. And alhamdulillah, so far so good. Alhamdulillah. तो हम लोग, सॉरी असद, आपके क्वेश्चन का कि यार आप अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हैं, इस पे एक तो चैलेंज हमारा ये था कि देखिए मतलब दो अप्रोचेस हैं। एक तो मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, और एक दूसरा होता है एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो शुरू में जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने वो गलती कर ली थी ब्रिंगिंग स्कूल इन वाली। तो वी टेकिंग अ वेरी स्कूलिश अप्रोच, वो खत्म की, एक हाइब्रिड अप्रोच पे अब थोड़ा सा आ गए हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग वी स्टिल वांट देम टू एक्चुअली go through their IGCSEs or O levels and stuff. तो उसके लिए जो एक हम लोगों ने करिकुलम फॉलो किया as such, वो IGCSE का ही था, because we do want them to prepare for their O levels. And फिर हम लोगों ने लेकिन हाइब्रिड वाला काम इस तरह से कि फॉर एग्जांपल, you know, my son loves history, my daughter loves geography. ठीक है? So they're like, you know, picking up their own stuff. They're like, you know, literature हो गया, videos, podcasts, whatever, on all these topics, books. वो इकट्ठी करके they're following them, then we're discussing it with them. Typically, that's how it is. It's like a blend of structured and unstructured approaches currently. इसका काफी ज्यादा ताल्लुक ना हमारे, मुझे लगता है ओवर द इयर्स मैंने भी ये चीज सीखी है कि हमारे अपने फियर्स होते हैं, क्योंकि जाहिर है आप भी एक माइंडसेट आपका ऐसा होता है कि आप एक स्कूलिंग सिस्टम से गुजरे होते हैं, तो वो क्लॉक टिक कर रही होती है कि यार अभी ओ लेवल्स का टाइम आने वाला है या मैट्रिक का टाइम आने वाला है, तो बंदा परेशान हो रहा होता है बार बार कि यार मतलब अभी तक बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, मुझे यहाँ तक पहुंचाना है उसको। तो वो नेचुरली वो चीजें हैं कि जो तंग करती है, लेकिन विद टाइम यू स्टार्ट गेटिंग मोर कंफर्टेबल विद द अप्रोच, आपको समझ हो जाती है। ऐसे ही वो जो एक रेस है, वो कि यार मतलब अभी तो इधर इस बुक के इस लेवल पे होना चाहिए था, अभी इधर पहुंचना चाहिए था, वो खत्म नहीं हो पाती। मतलब वो तो that's all a part of the unschooling your mind. तो बाज़ औक़ात you're right, मतलब you know हम लोग ये सोचते हैं अच्छा अभी you know उसको IGCSE में मतलब you know my daughter should be in वो साइंस का उसको ग्रेड 7 कंप्लीट कर देना चाहिए था, but then we realize कि नहीं यार उसका मैथ्स में जो है वो काफी आगे निकल गई है। Like fine with that, okay, मतलब ठीक है, थोड़ी देर के बाद विजिट कर लें, 1-2 महीने ऐसे आ जाएंगे जिसमें मतलब you know she'll pick up on science as well, या फिर मतलब she'll pick up on other subjects as well. तो वो अपनी पेस पे
एंड एक enjoyable and comfortable pace पे आगे बढ़ने वाला concept I think अभी थोड़ा सा वो बनता जा रहा है वक्तन फवक्तन. So, did you face any family pressures? You'd mentioned that somebody else was homeschooled, so perhaps that was less in your. मेरे जो my niece and nephews, yes, they were homeschooled, and you know my sister was very strongly in favor of homeschooling. Wow. So because obviously her kids were homeschooled as well. Right. And then we'd heard about all the stories of you know how her kids went through school and the turmoil that happened while they were in school in Pakistan and once they exited schools. And I'm sorry I'm like using schools in Pakistan. I shouldn't be actually saying that. It's schools generally the world over. We wali baat ye 5.5 versus 1. You know, rating is up. They're not like हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ था कि there is a world of a difference between the facilities in schools in Pakistan and facilities you get abroad, right? So Exactly. हो सकता है बाहर आपके पास इतनी कंपल्शन नहीं हो और हो सकता है वजूहात हों जिसकी वजह से आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजें. But here in Pakistan, it's primarily education is crap, right? So if you're trying to teach someone, you don't send them to school here. I mean, period. Exactly. If you can do it. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड वो एक हम लोगों को एक सपोर्ट मिली वहाँ पे you know they were like my all my nephews and nieces, they like you know एक वो architecture कर रही थी नास में अभी she got into NASA, and you know they got into their things before their time. Right. And they self-developed themselves in a way. जो बाकी मेरे nephews they pursued law. Right. And they're like, you know, you can actually, alhamdulillah, we can see a marked difference in the way they carry themselves with their profession. Because, you know, वो अपने आप को जिस तरह से educate करते हैं. For example, जिसने law किया है, उसके लिए मतलब वो barristry जो है, that's not the pinnacle. उसके लिए मतलब you know वो he's getting into subjects, he's getting into global bodies that are discovering niche subjects in law as well. इसी तरह जो आर्किटेक्चर कर रही है वो उसी तरह से मतलब you know तो उनकी जो learning curve and the quality of the learning perhaps वो मैंने थोड़ा notice किया कि शायद you know they were enjoying themselves and they had the elements of lifelong learners in them. और शायद हम लोगों का भी बल्कि यकीनन दुनिया ऐसी इवॉल्व और चेंज कर गई है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अलावा कोई ऑप्शन शायद है भी नहीं. तो इस वजह से आई थिंक ये तमाम चीजें जहन में रखते हुए हम लोग इस नहज पे पहुंच गए यार मतलब just hit the road with homeschooling. नहीं बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट किया है क्योंकि ये आई एम श्योर ये वसीम भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि ये वाकई एक अप्रोच चेंज हो जाती है. मतलब जैसे हम स्कूल जाते हैं स्कूल में एक अप्रोच होती है क्योंकि वो आया भी एक वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर आया था सारा जो स्कूलिंग सिस्टम आया था तो उसमें एक आप एम्प्लॉयमेंट के लिए तो रेडी हो जाते हैं उस तरीके से. लेकिन जो मैं अब देखता हूँ जैसे बच्चों में जो एक अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो दैट क्रिएटिव स्किल वो बिल्कुल डिफरेंट है. और वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने सामने देखते हैं उस चीज को आपका खुद भी कॉन्फिडेंस एज अ पेरेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है बहुत बेहतर होता है. और आप एंड यू नो इन योर हार्ट कि यार समथिंग इज वर्किंग आउट. मतलब शुरू में जो फियर्स होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ये काम कर रही है चीज. मैं ये देखता हूँ अभी मेरा बेटा है 13 साल का और अभी कल परसों वो एआई रिलेटेड कुछ काम कर रहा था और उसमें उसने कुछ 2 फिगर्स बनाए थे जो कि आपस में रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहे थे. अब कुछ अर्से पहले मैं ये डेटा साइंस की एक टर्म पढ़ रहा था कि रीइंफोर्समेंट डेटा साइंस नहीं सॉरी मशीन लर्निंग में कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरीके से होती है. लेकिन मैं ये देख रहा था कि अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे उससे बहुत जल्दी वो चीज पिक कर ली और जो उसकी अप्रोच थी और जो सारा कुछ था इट वाज वेरी डिफरेंट. ये चीज आपको वैसे नहीं मिलती लेकिन इसके लिए वो जो कहते हैं ना फन फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट यू ओनली गेट जब आप बर्डन नहीं होते आप रिलैक्स होते हैं एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में सीखते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है. बिल्कुल सही है. और बतौर इंसान मतलब हम लोगों के एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ ग्रोथ we have different interests as well. मतलब the mind needs to be open to learning ना जी. अब वो कोई एक वक्त आता है कि you know या कोई एक सीजन भी आ जाता है
say for example, my kids are keen towards sports this time. ये summers चल रही हैं, we've got longer days. तो अभी जो है ना उनको थोड़ा सा मतलब learning sport की तरफ आ गई है, and they're like trying to head towards sports and learn different new sports, and that opens up the mind as well. ठीक है, जैसा आपने बताया ये AI के reinforcement वाला concept है, अभी वो आपको माशाल्लाह बेटे का उस तरफ mind के, you will not expect the same thing, the entire class to align to that if you were going to a school. बिल्कुल वो वाला concept है, and alhamdulillah for the fact that this thing एक मतलब wider diaspora में भी बात कर लेते हैं, एक general सा एक ख्वाब है कि I always see an opportunity in Pakistan's adversity of education, and that opportunity is homeschooling, because ये जिसको हम लोग हुकूमतें आती हैं सारी की सारी और एक एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर तो कर जाती करती, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये होम स्कूलिंग एक ऐसी चीज है कि once we actually homeschool our kids and this concept spreads further, we can probably enable many families, चाहे वो किसी भी social उससे belong करते हो या financial background से belong करते हो, because homeschooling is not even expensive. It can be very expensive, but like you don't have to make it expensive, right? It can guarantee access to education, at least. Oh yes, exactly. अभी तो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा आ गए हैं और ये चीजें इस तरह की आ गई हैं, तो मेरे ख्याल से it is also an opportunity to probably solve to some extent, if not an entire extent, this education problem as well within Pakistan. Very true. Education. Now, do you work from home? I do. मेरा जो है मतलब काम थोड़ा सा remote है. So like basically, I work for Australia, so you generally find me working from 2 a.m. to 10 a.m. Right. So today being an exception, but yeah, generally it's like 3 days out of the week. And how much of the homeschooling would you say you do with versus your wife? Look, I think homeschooling, I mean, like in terms of educating, हम लोग वो टिपिकल करिकुलम वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करते, मतलब लाइक ओके करिकुलम मतलब भी फॉलो करते हैं, like if you're talking about like sitting down with the kids and teaching them, I would say I'm probably doing like about 40% or 30%, and my wife is doing the rest, right? But like if you look at it on a more holistic level, like engaging the kids with different activities, DIY, going for hikes and sports and stuff like that. So usme I alhamdulillah have found more time to actually engage myself with my kids, and that I think forms a very fundamental part of homeschooling as well. मतलब ये जो different activities हैं, these open up different circuits in the brain. वो चीज जो है, sorry, वो उस तरह से I think I'm engaged more in terms of involving the kids in extracurriculars, lots of conversations, lots of documentaries to watch together, lots of books to read, मतलब or comment on. इस तरह की चीजें जो है मतलब yeah, probably that's there. जो curriculum based है, जो structured approach है, उसमें well, hats off to my Begum. She's the one who's taking the front seat on that one. Have you found out that because this is something that we've seen with our eldest, as they age, your input in the structured part starts becoming less and less and less, because they are now अपने पैरों के ऊपर वो खुद चल रहे हैं, because they've now learned how to learn themselves, और उनको जो मसले होते हैं वो they don't come to you for a specific particular point, but other than that they are self-sufficient almost. I've you know what, I've kind of like I've been noticing that, and I've been thinking यार मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, because sometimes I actually
there's a task that's been given to, or like, my son or my daughter is working on a particular workbook या कोई एक worksheet पे काम कर रही है. It's like, what, you do this and then we'll go out and then मतलब हमारा जो भी next plan है, we'll go for a hike or we'll go for some sports or something. और मैं जब वो देखता हूँ तो she's done it all by herself or he's done it all by the Ibrahim अगर बैठा होगा, तो मैं ये सोचता कि यार इससे कैसे, मतलब neither did I intervene, neither did his mom intervene, तो ये कैसे generally they are I do notice that they're navigating on their own और उनका जो वो confidence है navigation वाला वो बढ़ता जा रहा है. If not the मतलब maybe like पहले they used to like ask for more coaching. अब जो कोचिंग है मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मतलब वो एक अगर करिकुलम बेस्ड एक किताब चल रही है तो ट्रांजिशन फ्रॉम चैप्टर 1 till chapter 4 or 5 has less interventions from a coach or a parent who's trying to homeschool. Right. So ये चीज, yes, and actually thanks for validating that, because I was thinking कि यार हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोगों ने जब तक टीचर नहीं कहती थी कि यार आज ये चैप्टर नहीं करना, तब तक हम उस पे जाते थे. Is that something right that's happening? But sometimes I literally feel like telling him, no, that's wrong. You can't get on chapter number 4. Get back to chapter number 2. कहते कि नहीं मैंने कर लिया बाबा. I've done these exercises. I've done that. And then I open and say, अच्छा मामा ने पढ़ा नहीं मैंने किया, हाँ ये क्वेश्चन था यहाँ पे फंस गया था. So that thing is alhamdulillah a very good outcome of this as well. वो confidence थोड़ा सा, और शायद वही वाली बात के होम स्कूलिंग में जरा मतलब experiences वो brain के circuits जिस तरह से खुलते हैं, learning is not just linear, it's lateral as well. तो उस वजह से मतलब शायद learning enhance हो जाती है. This is another point that Asad and I were discussing in a previous podcast with someone. वो ये था कि when your child starts putting output that exceeds what you would do. जिस तरह ये mention कर रहे हैं ना कि इसने AI का his son has figured something out, And my children do something that is beyond what my capabilities are. Right? That's where the light bulb really goes, and you go like, whoa, maybe this is why, this is why it works. Yeah. So, इंटरेस्टिंगली ना यही चीज मैं इधर कॉलेज रोड पे हम गए थे, मैं और मेरा बेटा गए, और मैंने कहा कि यार हमने पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट की है तो लाइट्स बड़ी एक्सपेंसिव है ना, तो मुझे लाइट्स ऐसा करते हैं खुद ही बनाते हैं हम. तो लाइट्स खैर अभी तक हमने बनाई नहीं, लेकिन हम एलईडी उस के पास गए और हमने कहा कि यार देखते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं, तो उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं. मैंने कहा यार ये वाली मुझे दे दो, 12 वोल्ट की दे दो, इतने वॉट की होनी चाहिए. अच्छा, मेरे बेटे ने भी उसके साथ कॉन्वर्सेशन करनी शुरू की. जब करने शुरू की थोड़ी देर के बाद वो कहता है ये मेरा ख्याल लगता है आपका उस्ताद है. मैंने कहा ये मेरा ही उस्ताद है, और एक्चुअली मेरा उस्ताद है इस चीज में, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें वगैरह लेनी हो तो मतलब ही फार एक्सेल्स द नॉलेज दैट आई हैव. तो वही वाली जो बात आप कह रहे हैं ना कि वो, और ये पैराडाइम शिफ्ट है, बिकॉज जैसे समवन आई थिंक असद वाज आल्सो मेंशनिंग अर्लियर या कोई और, कि हम अगर हमारा बच्चा हमसे कोई अच्छी बात करके आता है तो ट्रेडिशनली उसको पुट डाउन किया जाता है कि ओ तुझे क्या पता है, you know, but in our case we value that. और उसको applause और उसको appreciate किया जाता है कि यार ये. और वसीम, आई थिंक इसमें ये भी है कि जब एक बच्चा अपने लेवल से बढ़ जाता है, आई थिंक स्कूल्स में ऑप्शन ही नहीं है उसको पुट डाउन करने की, बिकॉज उसको लेवल करना पड़ता है बाकी 29 बच्चों के साथ. वो अगर एक सिर्फ 30वां जो है वो उसका कर्व ऊपर चला जाता है तो बाकी जो है ना तो they have to iron them out. So the poor teachers, I don't even blame the teachers. I'm a big fan of teachers. I love this profession of teaching. Both my parents, Allah yarhamhum, they were both teachers. लेकिन मतलब unfortunately teachers cannot even bring मतलब, or their hands are even tied by curriculums, by boards, by governments, KPIs, scale. I mean, you've got 600 kids, 300 kids, 20 kids, There you go. And there's not much that you can do.
and वही मतलब you'll iron out one for the other और इस तरह से वो चलता जाएगा. तो टीचर जब मतलब एक जरा one to one करता है तो you have a different experience with them. गालिबन I don't know how things unfold, लेकिन हम लोग अभी सुनते में आ रहे हैं कि यार मतलब आगे जाते वक्त बच्चों को शायद ट्यूशंस की जरूरत पड़े, and I'm not against that because like at a one to one level, ठीक है, या फिर मतलब on a 1 to 4 level or a 1 to 5 level, the teacher can impart better education, can align somewhat more with a child's learnings on a particular subject instead of imparting it to a class of 30. तो शायद हो सकता है गालिबन आगे जाते हुए मतलब that is something that can work. So I'm not against that. I'm in fact मतलब बड़े लोग ये कहते हैं कि यार आप लोग जब ये होम स्कूलिंग कराते हैं, so एक सवाल उठता है कि अच्छा are teachers failing us, and I'm like no. In fact it's like it'll be a big injustice कि अगर हम ये कहें कि it's the teachers that are failing them, because we haven't given them that chance to actually. अगर आप एक फिजिक्स के टीचर को कहोगे कि यार look, I'm going to let you out in the open, आपका जो एक्सपीरियंस है, you go design your curriculum and how you want to teach the kids, वो कहेगा यार फिर वो बोर्ड में नंबर कैसे आएंगे, A's कैसे आएंगे, वो प्रिंसिपल कैसे मानेगी, AP कैसे मानेगा, वो इतनी रेड टेप है कि टीचर बेचारा टीचिंग तो कम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या वो जो एम्बार्गोज हैं, रेगुलेटरी एम्बार्गोज के अंदर इतना फंसा हुआ है कि वो भी एक हिस्सा का अलमिया है. तो होम स्कूलिंग can actually solve quite a few of these problems. Very good perspective. Very good. Yeah. Very good. So yeah, this is basically like a bit about our homeschooling journey. So But moving on forward, do you envision your children attending university after their O's and A's in Pakistan, or going back to Australia, or देखिए, यहाँ की university? I mean, I'll tell you why, because this is a discussion that Aisha and I have been having recently. Because our eldest is now, she's doing her 9th and going to 10th, and then and we're like, yeah, यहाँ की universities भी are a replication of what our primary elementary schools are. exactly. जो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ बेहतर है, नस्ट हो गई, लाम्स हो गई, वो 4, 5, 8 उन्हीं में आप डाल देंगे, right? But still the curriculum and the professors and the teachers here are still enclosed in a box. They are not going to let your child explore and discuss and question. Primarily, they will not teach them to question. Or so what are your thoughts about that moving on forward? What do you envision for them? I'll probably, this is something that pops up into our discussions as well at home, and this is something that comes up regularly because obviously मतलब next steps यही होता है. But we're seeing, frankly, I'll be honest with you, I don't have an answer to this right now. Okay? The reason being that things are evolving so quickly and so rapidly that I'm not really very sure whether, I mean, like in 5 years' time when they'll be going to university, is university going to be the, in Pakistan or overseas going to be the best thing? But look, when I'm not sure, I tend to lean on what the general diaspora is doing. And देखिए, university का ये है कि I think अभी जो मेरे thoughts हैं, I'm not, so like I said, I'm not sure what my thoughts on this are. That you're right, मतलब कि universities वहाँ पे वैसी नहीं है कि मतलब जिस तरह से हम लोग मतलब उनको एक open minded एक platform दे रहे हैं to discover their own strengths and weaknesses and skills and polish and hone themselves. Universities वहाँ पे बेहतर जरूर हैं, लेकिन again they're not like the pinnacle of learning, right? But then again they're better. And एक वो जो एक वो चाहिए होता है ना, there's this like general global acceptance, एक वो business card होता है शायद कि यार मैं फलां यूनिवर्सिटी से किया, मैंने फलां यूनिवर्सिटी, जब तक किसी को कहते नहीं, unfortunately अब तक वो business वो वाला जो सिक्का है ना यूनिवर्सिटीज वाला, वो चल रहा है. Right. ठीक है, whether you like it or not, वो सिक्का चल जरूर रहा है.
ठीक है ना, मतलब कोई बंदा कहे यार मैं मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से किया है, मैंने व्हाटएवर प्रिंसटन हार्वर्ड एमआईटी वगैरह से किया, तो वी ऑटोमेटिकली assume that guy is a genius, right? And we must have this person working for us, or this is the person we should trust with all our money, we'll invest everything with that person. तो ये जनरल सिक्का तो है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से अगर जाते हैं तो I would actually go for the overseas ones as opposed to Pakistani ones. मैं भी आपको अपने nephews और niece का कह रहा हूँ, वो भी इनमें से जो यूनिवर्सिटी से भी गए, आपने जो अच्छे वालों के नाम लिए हैं, तो वो a lot of dissatisfaction has been expressed on those ones as well. मतलब वो basically वही वाला setup चल रहा है, but obviously the faculties different होंगी, so different faculties will probably have different standards. But लेकिन I was surprised. मतलब NUST is a very good university, for example. LUMS is a very good university in Pakistan. लेकिन उनके भी मतलब वो थोड़ी चीजें मतलब GIK मिसाल के तौर पे बड़ा अच्छा समझा जाता था या है। तो मैं जनरली ये सोचूंगा कि अगर यूनिवर्सिटी करनी ही है तो बाहर से कर लें, वो बेहतर है। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग वाली ऑप्शन भी है अब तो। जी जी, डिस्टेंस लर्निंग भी है। Again, मतलब वो based on the subjects that they choose, not sure whether those options are going to be available or not. लेकिन मतलब कुछ fields ऐसी हैं, for example, my son Waleed, he loves farming. ठीक है, उसको फार्मिंग का इतना मतलब शदीद शौक है, and कि I'll see him as someone who's going to get into agriculture. तो अब वो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि यार एग्रीकल्चर में जो है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ क्वींसलैंड is very heavy on research and stuff like that. So I'd rather want to send him there. लेकिन थोड़ी सी अप्रोच जो है ना, मतलब मैंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ जो बच्चे जाते हैं वहां पर वो थोड़ा सा जरा जैसे हम वो पंजाबी में कहते हैं ना खज्जल ख्वार, वो भी थोड़ा सा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो एक माहौल टोटली डिफरेंट मिल जाता है एकदम से, और फिर बैचलर्स में जो जाना होता है ना, बैचलर्स इज एन एक्सटेंडेड 4 year साइकिल। तो 4 साल का जो साइकिल होता है वो फिर मतलब बेचारे बच्चे वो अपने आप को फाइनेंस भी कर रहे होते हैं, तो 4 साल गेट्स इनटू 8 years, and then it's like just trying to keep your head above the water, learning सारा back foot ले जाती है, odd jobs front पे आ जाते हैं, so there are more challenges. मैं शायद इस अप्रोच पे थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 साल का जो उन्होंने अगर यूनिवर्सिटी करनी है तो वो लोकली पाकिस्तान से ही कर रहे हैं, मतलब अपने मास्टर्स के लिए चले जाए to specialize in something. That will probably be a better approach. But look, again, mera jo opinion has just thoughts evolving. Right. It's not hard. Before I forget, Asad, this is a pin for us. कि इनके nephews or nieces को in the series we do for kids who've already been homeschooled and now living professional lives, we would really like it if you could connect us with them so we can get their insights. Definitely. मैं तो बल्कि उनको ये कहता रहता हूँ कि यार मतलब you guys should actually be promoting this, because they are kids who have actually had a flavor of Pakistan's premium schooling system, जो यहाँ के मतलब आपके private schools हैं, और फिर उनको छोड़ के they've homeschooled and like they've challenged the norm like about 7-8 years earlier. मतलब जब homeschooling हुई तो थोड़ा सा because of the more connected world, more and more people are coming, उसके बहुत ही कम था, तो वो जरूर I think that's something that can actually go a long way in inspiring others as well. So yeah. Wasim, sorry, just coming back to your question, I'd like to hear your thoughts about what you guys think about university for your kids. आप लोग किस उस पे पहुंचे हैं? Again, ours is fluid, and with circumstances change, and but right now, I also concur with your assessment that bachelors in Pakistan, if they go to university, which I think they probably will, क्योंकि उनकी मेरी वाइफ जो है उनका ये इंसिस्टेंस है कि भाई ये तो करना है, फाइन, ठीक है, bachelors in Pakistan and then go off and do your masters abroad.
ठीक है. That's something that. And one thing I'd like to put a strong note from personal experience. I would not send an unmarried child for bachelors. अगर bachelors करने जाना शादी करके जाओ. वाह, क्या खूबसूरत बात की है. मतलब I think that's actually a very beautiful thing to do. I mean, like, लेकिन yeah, I mean, like, obviously उसमें थोड़ा सा मतलब वो to manage देखो, I think मेरे ख्याल से हम and I don't know whether we've discussed this before, Asad. I think हम जुल्म करते हैं हमारे बच्चों के साथ by delaying their marriages till their post bachelors, right? अल्लाह ताला ने उनको बनाया है और उनकी नीड्स हैं, उनके हार्मोन्स हैं, उनकी नीड्स हैं. You've gone through it, we've all gone through it, right? And it's unfair, it's zulm to ask them to control themselves, not do this, just because हमारी सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है. 18 साल के बाद आपने शादी करनी है, 22 के बाद आप करेंगे. मैच अच्छा नहीं मिलेगा जब तक तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, व्हाट नॉट. So I think as parents, that's also a norm that needs to be challenged and looked at. And I first came across this. मेरी sister-in-law के ताया थे Dr. Shujat Berni, very noted psychiatrist in Saudi Arabia, and he said he got all of his children married off at 15, 16, right? And he's like, देखो, alhamdulillah, Allah Ta'ala has given me enough money. I can take care of my child and I can take care of his spouse as well. And their children. ठीक है. तो that should not be a factor. And risk Allah Ta'ala ने भेजना है. वो बच्चा अपने साथ risk लेके आता है. Right? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. And he's like, I'm not gonna, this is their need, this is their physical, mental need right now. Yep. Let's not stop it. So his children got married at 16. They paid, and they were having children when they were 18, 19. और उनके साथ ही ऊपर बढ़ गए, उनके साथ ही घर के ऊपर ही वो पढ़ाई भी कर ली, डॉक्टर्स भी बन गए, सब कुछ हो गया और बच्चे भी बड़े हो गए. And so now you see them in their, they're in their mid-30s and their children are in their late teens. And you're like, hey, you're friends. Yeah, they grew up together. They grew up together. Yeah. So, my sister and my nephews and niece, my sister got married really quickly. She was like, same around the same age group, or वो भी इसी तरह से. And it works. अच्छा, ये चीज असद and Wasim, I think once you start homeschooling ना, you sit back and you see कि यार ये तो मतलब कुछ ना कुछ ये तो काम कर रही है चीज. You start challenging quite a few norms in society, not just homeschooling. ये हमने पहले भी बात की थी. हाँ, किसी एपिसोड में मैं ख्याल हमने पहले भी बात की थी कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ना माइंडसेट हर चीज में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. मतलब यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि यार अच्छा नहीं ठीक है, इसका भी ऑल्टरनेट हो सकता है. मैं तो एक उसी तरीके से चलता आ रहा था, कभी डिफरेंट चीज को डिफरेंट अप्रोच की तरफ सोचा ही नहीं, एक ही तरीके से बस आप चल रहे होते. लेकिन आफ्टर होम स्कूलिंग यू स्टार्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग कि नहीं यार अच्छा ये इसका ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है, तो कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज. बिल्कुल. अच्छा, ये it opens a new chapter of learning for parents as well. बिल्कुल. मतलब it's not just the kids. ये होम स्कूलिंग के बारे में हमेशा हर एक को जो भी मतलब मेरे पास आता है कहते कि यार अच्छा आप होम स्कूल कर रहे हैं, बढ़िया. मैं कह रहा हूँ यार सबसे ज्यादा हिम्मत या सबसे ज्यादा प्लानिंग बच्चों का नहीं, मतलब it's like the parents who need to unschool and challenge the norm. जो एक वो वाला बैरियर क्रॉस करना होता है ना, वो एक बड़ा मतलब एक अच्छा एक चैलेंज होता है. लाइक it's subhanallah, it yields quite a few results. नहीं, मतलब even as a family you get more gelled in together. मतलब ये जो लर्निंग होती है कि आप डिस्कशंस कर रहे हैं, कोई किताब खोली हुई आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, या वैसे आप जनरली डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा आपकी एक बॉन्ड जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाता है, जो कि आजकल मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है बच्चों के केस में. कि बच्चे अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है ना बच्चों के साथ बात करने वाला, तो मतलब अगर उसको प्रॉब्लम आएगी कहाँ जाएगा, वो अपने जैसे के पास ही शायद प्रॉब्लम जा रहा हो जो कि
शायद उतना ही बेवकूफ होगा इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज। तो वो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वो वाला रिलेशनशिप हो कि बच्चा कोई भी प्रॉब्लम होती है, इतने सारे प्रॉब्लम्स बंदे को जिंदगी में फेस होते हैं, तो वो आपके आके बड़ा ओपनली आपसे डिस्कस कर सके हर तरह के टॉपिक पे। ऐसे ही है। And that's something that comes out of this. Bilkul, definitely, totally 100% with you on this one. Now, in a typical day, how much time would your children be actually studying with books on a curriculum versus doing extracurricular activities or self-learning or interest-based learning? I think hardly कोई मतलब घंटा या 1.5 किताबों पे होगा, ठीक है। और वही मतलब हार्डली, मतलब जब मूड होता है, कभी कभार हम लोग मतलब मूड बना लेते हैं, लेकिन ये है कि मतलब वो घंटा 1.5 मतलब मैक्सिमम बैठेंगे। एंड व्हाट, आई डोंट फोर्स देम बियॉन्ड दैट, बिकॉज एक वो माइंड की कैपेसिटी होती है, और वही वाली बात कि आई एम अनस्कूलिंग माय माइंड एज वेल, वी आर अनस्कूलिंग आवर माइंड, माय वाइफ एज वेल, कि वो हम लोग कहते हैं कि यार जो उसकी कैपेसिटी है लर्निंग की, वो 1.5 घंटा है, इट्स लाइक क्वालिटी, तो let that 1.5 hour of quality come in, instead of gluing them to a certain book for 4 hours and letting the quality out. तो आई थिंक मैक्सिमम शायद घंटा 1.5 घंटा होगा, 1.5 घंटा मैक्सिमम क्या है। अच्छा, शुरू में ये भी बड़ा होता है कि बंदा सोच रहा था यार सिर्फ घंटा ही पढ़ा है यार, जब तक 4 घंटे 5 घंटे नहीं बैठाऊंगा तो वो आपको खुद जो है ना, खुद प्रॉब्लम हो रही होती है। बिल्कुल, वो ऐसे होता है यार, स्कूल वाले तो गए देखो सुबह 8 बजे और वापस आएंगे 2 बजे, तो ये तो इतनी पढ़ाई करके आए हैं और हमारा बच्चा सिर्फ 1 घंटा, वो भी मुश्किल से पढ़ रहा है। घंटा भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत होता है, क्वालिटी का होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब, और अब थोड़ा सा मतलब वो ये भी है कि बिकॉज अभी तक वो एग्जाम के स्विंग में नहीं आए, तो शायद मतलब उनके ऊपर इतना वो प्रेशर भी नहीं है, लेकिन आगे आगे ये चैलेंजेस आएंगे। आई थिंक वसीम, योर डॉटर इज लाइक इन ग्रेड 9, आपने मेंशन किया। हाँ, उन्होंने किया, और हम वी फेस दैट एज वेल, हमें भी ये डर लगा हुआ था यार, ये तो मुश्किल से आधा घंटा 15-20 मिनट ही बस करती है, फिर ख़त्म, तो how is she going to do it? But when push came to shove, she knew that she had to do it, and she would then sit. Exam से पहले, I think maybe it was 3 months that she would sit for then 3 to 4 hours a day. And self, वो तो वो खुद हो जाता है, वो खुद हो जाता है। So ये वैसे मुझे मतलब थोड़ा सा इसमें challenges obviously मतलब हर चीज में होते ही होते हैं। होम स्कूलिंग के केस में मतलब जनरली लोग ये कहते हैं कि यार मतलब socialization is one of those things. So alhamdulillah for the fact that that is not something that I think is a challenge in homeschooling. मेरा नहीं ख्याल, because we've got alternative means of socializing, and then socializing is just not socializing with people within your own age group. Right. At different levels, आप मतलब तो वो we've kind of overcome that. एक चैलेंज जो शायद अभी भी मतलब थोड़ा सा मतलब परसिस्ट करता है और मुझे मतलब थोड़ा सा तंग करता है, वो ये है कि वैलिडेशन ऑफ एफर्ट जो है ना, या उसका जो मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू गेट ऑन टू द स्ट्रक्चर्ड पार्ट ऑफ थिंग्स, तो लाइक आपने से फॉर एग्जांपल एक लेट्स से आपने मैथ्स का कोई आपने फ्रैक्शंस कर लिया, राइट? Like when you've done fractions, how do you evaluate that your child has actually understood the whole thing? तो उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर वो आप IGCSE की पटरी पे चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके अलाइन होना चाहिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है या वो वाली चीजें। तो वो जो एक पास्ट पेपर्स और वो पास्ट रिकॉर्ड्स एंड देन चेकिंग दैट एज वेल, वो थोड़ा सा मुझे इसका एक जरा चैलेंजिंग पार्ट लगा, बिकॉज एज ह्यूमंस वी लाइक टू गेट वैलिडेटेड फॉर एफर्ट एज वेल। मतलब एक वो वैलिडेशन की भी वो लेकिन ये समझ तो आ गई है कि बच्चा आप उसे डिस्कस भी कर लेते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। बट द वे वी आर ओवरकमिंग इट इज वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट एज मच एज वी कैन फ्रॉम पास्ट पेपर्स। जूनियर लेवल्स के जरा कम मिलते हैं, मतलब ग्रेड 3, 4, 5 के जरा कम मिलते हैं, लेकिन आगे जाके सीनियर लेवल्स के जरा ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो वो एक चैलेंज दिख रहा है हल्का सा इस पूरे एवेन्यू में। What do you think is a challenge, Asad,
for you personally, अगर कोई homeschooling से related आपकी journey में? Before I answer that, वसीम भाई एक सेकंड सिर्फ, आपने अभी रिकॉर्डिंग ऑन की थी, आई होप कि आपने उमर की रिकॉर्डिंग की हुई हो ऑडियो की. So मेरे ख्याल से हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला has been very very kind and so I've got a recording on my desktop and which is recording our Google Meet and it's recording your two voices. मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन आई होप कि उमर की ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो. नहीं तो मैं तो फिर बैठ जाऊंगा. नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला it's I just realized that वो रिकॉर्डिंग का बटन हुआ नहीं है. तो What we usually do is कि वो Google का भी as a backup जो है ना रिकॉर्ड हो रहा होता है ऑडियो, just in case कि it has happened in the past times कि बाज़ दफ़ा वो जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो एटलीस्ट गूगल सेव्ड अस कि यार ऑडियो और सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था. अरे शुक्र है, मेरे कहते सेव बाय द बेल. हाँ नहीं अच्छा. So we were discussing challenges and हाँ challenges मेरे एंड पे तो काफ़ी सारे खैर रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट challenges रहे हैं. अभी करंटली ये ज़्यादा ये होता है कि अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अगर थोड़ा सा यूज़ किया जाए, ऑल्दो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ये है कि बाज़ दफ़ा करनी पड़ती है. फॉर इंस्टेंस मैथ्स जैसे मैं कराता हूँ, मेरे साथ कर रहे होते हैं बच्चे, लेकिन गेटिंग देम टू सिट एंड डू मैथ्स दैट्स वेरी चैलेंजिंग. मुझे बहुत मतलब काफ़ी इनोवेटिव बाज़ दफ़ा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि शुरू से ही बच्चे मेरे होम स्कूल रहे हैं, तो उनकी एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है. दे हैव नॉट सीन दैट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि यार बैठ के मैंने इतने घंटे ये करना है. तो उनका अटेंशन स्पैन उस तरीके से कम है कि हाँ अगर उन्होंने कोई चीज़ करनी होगी ना, फॉर इंस्टेंस अगर कोई चीज़ सीखनी है, जैसे मेरे बेटे को इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो 8-8 घंटे बैठ के 2-2 3-3 दिन बैठ के मतलब उसके अंदर घुस जाएगा और उसके अंदर वो मतलब इतनी नॉलेज माशाल्लाह निकाल लेगा कि अगर यूनिवर्सिटी गोइंग लेवल बच्चा होगा ना, वो देख के उसका प्रोजेक्ट हैरान हो जाएगा कि यार ये कैसे किया. लेकिन अगर मैं वो चीज़ करूंगा ना जो इसका उसको इंटरेस्ट नहीं हो रही, या जो इसको एज इन उसकी नीड समझ नहीं आ रही बेसिकली कि यार अगर मैं ये मैथमेटिक्स में ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो दैट बिकम्स अ चैलेंज कि यार उसको फिर उसकी वैल्यू नहीं नजर आएगी. ही विल नॉट सिट डाउन कि यार फिर वो मुझे थोड़ा सा ड्रिल करानी पड़ती है चीज़, बिकॉज आई नो कि यार अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने आगे जाना है, या फॉर इंस्टेंस इवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाना है, कोई ऐसी चीज़ जाना है, तो मैथमेटिक्स एक फंडामेंटल है जो कि यू नीड टू नो अलजेब्रा. कि अलजेब्रा जब तक आपको नहीं आता होगा यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट फॉर्मूलाज यार किस तरीके से हो रहा है. तो उसकी ये दिस डज बिकम अ चैलेंज के. और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अगर मैं ये सोचूं कि यार मैंने इनको कोई जैसे एग्जाम दिलवाना है, मैट्रिक करवाना है, या ओ लेवल्स कराने हैं, लेवल्स कराने हैं, तो गेटिंग देम टू डू दैट, वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज स्टिल अ वेरी बिग चैलेंज, जो कि अभी तक नहीं है, लेकिन अभी इट्स वेरी फ्लूइड. वो बहुत eventually they'll evolve towards this as well. तो लेट्स सी कि हम उस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं. अभी it's an open field. Yeah, that is actually a challenge. You're right. मतलब अगर इंटरेस्ट ना हो ना किसी चीज की तरफ, लेकिन वो क्योंकि वो एक करिकुलम और स्ट्रक्चर में डालना ही है, तो उसमें थोड़ा सा yes, I agree to you कि ये है इस तरह से. And I think getting a bit bored is also a part of the learning curve. Exactly. Because मतलब जिंदगी में मतलब एक वो उस तरह से होता नहीं कि everything is of interest. अच्छा ये ना इसमें ये बड़ा मजे कि हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था वसीम भाई, आपको याद होगा, आबिद भाई के साथ. उसमें उन्होंने ये चीज बताई थी कि उन्होंने बिल्कुल अपनी बच्चियों को बोर होने दिया था. कहते हैं इतना बोर होने दिया था कि उसके बाद जो है ना, कहते हैं एक्चुअल लर्निंग और एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई उनकी. जब उन्होंने देखा कि यार कुछ भी नहीं है, कुछ करने को नहीं है, फिर देन दे स्टार्टेड फाइंडिंग वेज, इनोवेटिव वेज, किस तरीके से चीज सीखनी. इंटरेस्ट बेस के ऊपर मुझे एक चीज़ अभी ख्याल है कि योर सन हु इज़ इनटू एग्रीकल्चर, ऑस्ट्रेलिया की एक गिफ्ट टू द वर्ल्ड है which is permaculture, right, which was created by Bill Mollison, and अब वो जेफ लॉटन भी कर रहे हैं, and lots of, I mean पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है. But if it's something, if he's interested in agriculture, then please keep him away from traditional ag and guide him towards permaculture in whatever. permaculture की तो एक बड़ी अच्छी सी हमारी एक ग्रुप भी है, तो अच्छा ये तो एक खैर ऐसा टॉपिक है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट homesteads and farming and all that. Really?
unfortunately, लेकिन यहाँ पे मतलब this is like come across as a massive challenge in Pakistan because यहाँ पे मतलब land hold is a very major problem. And sometimes you need obviously not sometimes, all the time you need land for farming. और वो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता. But yeah, look, I mean, like you win some, you lose some. ये चीजें चलती लेकिन हैं. इधर हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है. आपके साथ वसीम भाई बैठे हैं, आप इनसे बहुत ज्यादा गाइडेंस ले सकती हैं. ऑलरेडी हैज अ कॉटेज इन सिमली एंड ही इज डूइंग पर्माकल्चर एज वेल. तो काफी कुछ. और मैं आपकी वाली स्टेज पे हूँ जिसपे मैं इस बारे में पैशनेट बहुत हूँ, लेकिन अभी वही लैंड वाला और सारा कुछ किया, लैंड लेना है, देखना है किस तरह से करना है. मैंने इस पे रिसर्च बहुत हेवी की हुई है on land and where to get land and the processes behind it, और जो local regulations है, और ये DC ऑफिस के चक्कर और पटवारी जटवारी ये सारी चीजें. लेकिन मुझे बहुत डाइसी लगा है, मतलब land ownership. It is. I would fully agree with you. It is, but it's doable. I mean, you just have to ensure that you do your due diligence, and you have to ensure that you get everything vetted out and checked. And alhamdulillah, it happens. For example, our cottage is opposite Simli Dam. So it's at about 3,000 feet, 2,800 feet. Or alhamdulillah, it's a lovely pine forest. Well, was a lovely pine forest until we had a massive wildfire 2 years ago. Wow. Or it just wiped everything down to the ground. Though we're starting again from scratch. What's up? This is part of Allah's thing too. ये तो फिर है, and तो माशाल्लाह, alhamdulillah for the fact that you found that little piece of heaven over there. Yes, मतलब ये it is. Pakistan में मतलब this is a like a bit of a challenging thing. Maybe I mean like Asad and Wasim, yourself, we can kind of share notes on this and see how we can go forward. Sure. बहुत ज़्यादा groups बने हुए हैं WhatsApp पे farming in Pakistan. लेकिन मतलब I see कि वो direction थोड़ी सी ज़रा miss out हो जाती है. It depends also on what you're looking for. So I recently met somebody, and his insistence was that you should get land in a community, with a community, as opposed to being an individual parcel. Like ours is an individual parcel of land, but I mean, we're sort of in a community because we've been buying land in that area for the last 10, 15 years. But so I know the people there. But he's saying that you should buy land as part of a new coming community of like-minded people, and who have a similar mindset to you, whether they're preppers or whether it's a religious mindset or whatever it is, right? So वो इज्मा के अंदर strength है. That was his point, and I agree with that. I do agree with that, especially for somebody who's starting off new. That helps. उसके अपने caveats और अपने problems भी होती हैं, because then you're kind of bound. Or as homeschoolers, we're kind of like our freedom also. Right? And we want to do our own stuff, so we don't want to talk. और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई regulations वगैरह ऐसा है ही नहीं. It's a wonderful place to do whatever it is you want to do. आजाद, कुल्ली आजादी है जो करना. Truly आजाद, unless you're from a political party, but I'm not. No, none of us are, so not good. I mean, and I frequently say ना कि freedom है ना, freedom you can go pee anywhere you want and no one's going to say anything to you. This is freedom. ऐसे ही. तो अब उसके downfalls भी हैं, because everywhere you go it's stinking. Yeah. I mean, like there are always pros and cons to everything. लेकिन अच्छा, बाहर की societies भी जो so called free societies अपना वो कहते हैं, वो जिस तरह की restrictions छुपे ढके तरीके से डालते हैं, वो we can't even imagine them. मैं अक्सर मतलब मतलब societies को compare करता हूँ, because I'm multi-ethnic myself, so I've very very closely studied different governments and different social setups. So for example, Iraq में था, during the time, तो मैं अक्सर मैं joke around करता हूँ कि यार जो बाहर की जो बड़ी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, आजाद वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है ना, they would put the likes of Saddam Hussein to shame as well, in terms of how they enforce certain things on their people and how they curtail certain freedoms. तो यहाँ की जो आजादी है ना, वो कोई बड़ी जैसा पंजाबी में कहते हैं ना, वखरे लेवल की है. तो वो that's something to actually take advantage of.
Yes, absolutely. I mean, I'm just like we homeschool, right? तो alhamdulillah, nobody's gonna come and question you, right? आपने रजिस्टर कराया अपने बच्चे को, आप क्या पढ़ाते हैं, क्या करिकुलम करते हैं? ऐसे No, no. ऐसे ही। और बाहर ये कर ही नहीं सकते। हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी ऑस्ट्रेलिया हम लोग विजिट करें और थोड़ा सा 3 महीने का विजिट करें, फिर हमने सोचा कि नहीं, वहां पे जो रेगुलेशन है वो ये कहती है अगर आपका बच्चा 3 महीने के लिए तो ये मस्ट बी रजिस्टर्ड इन स्कूल। आप उसका कर्टेल कर रहे हैं बच्चे के राइट्स को। तो अब उनको कौन समझाया कि नहीं यार आई एम अ होम स्कूलर और ये है वो है, तो यार यहाँ पे अच्छा है, मतलब यू नो वी डूइंग इट, वी डूइंग इट। अच्छा, आई मीन इसके साथ भी बीच में एक हमारा वी हैड अ थॉट प्रोसेस कि भाई अगर खुदा न खास्ता इफ द गवर्नमेंट डज enforce laws that your children have to be enrolled in school, अभी तक तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर पाकिस्तान की तरह आप एक स्कूल बना लें। स्कूल बनाने क्या मुश्किल है, स्कूल बना लें, बच्चे उसमें एनरोल कर दें, यू नो, एक कागजी बिल्कुल सही, सारे होम स्कूलर्स मिलके उसके अंदर, यू नो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मेक सेंस। एंड एक्चुअली मतलब यू नो यू कैन ड्राइव दैट कांसेप्ट ऑफ ओपन लर्निंग within that school as well कि यार मतलब जिस तरह से मतलब होम स्कूल में ना ये काइंड ऑफ ऑल्दो मतलब ज़ाहिर स्कूल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक वो बेसिक वैल्यू चेंज जो आप है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ वैसे भी मतलब काफी एक्टिव कम्युनिटी है भी अल्हम्दुलिल्लाह विद इन इस्लामाबाद। अब तो काफी ज्यादा हो गया, पहले तो एक चैलेंज होता था किसी को ढूंढना कि यार लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी आप ग्रुप्स में भी काफी सारे लोग हैं और आ भी रहे हैं, तो दैट इज आल्सो एनकरेजिंग। Definitely it's like you know one of those things that अगर कोई इस तरह का मतलब एक वो होता है सेटअप, तो obviously this is the alternative plan B कि मतलब इन केस अगर मतलब गवर्नमेंट इस तरह करती हैं तो जाहिर है बहुत जुगाड़ है पाकिस्तान में, नॉट एन इशू। ब्यूटीफुल प्लेस, इफ you're a hacker, this is the country to be in, you know? Oh yes, freedom से कहते हैं ना, मतलब the land of true free opportunity, I guess it comes with its pros and cons obviously, but still I mean like freedom is priceless. So for those people who are thinking about moving back, and we had another gentleman वो वापस्तानी वाले, उनको भी आना है हमारे, but what are your thoughts for you know a couple who's in the West right now, for example, and they're concerned about, for example, LGBT, you know, in their school curriculum, or they're concerned about other things, and they're like, yeah, let's हम पाकिस्तान चलते हैं वापस, लेकिन वो कहते हैं यार पाकिस्तान से इतने लोग गए थे, वो तो 4 साल बाद वापस आ जाते, इनवेरिएबली चले जाते, राइट, बिकॉज यहाँ के मसाइल हैं, राइट। बिल्कुल है। What would your advice be for them? देखिए सबसे पहले तो आई थिंक बिकॉज मैं क्योंकि खुद इस जर्नी से ही गुजरा हूँ, तो एक ये है कि अपना जरा दिल मजबूत रखें, मतलब इट्स नॉट एन इजी ट्रांजिशन, ठीक है, लेकिन इसके अलावा देयर विल बी प्रोज एंड कॉन्स टू द मूव, ठीक है, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। It's not going to be because generally इंसान जब भी move करता है ना, you tend to move towards the better. लेकिन when you're actually concerned about you know certain things clashing with your moral philosophies, like साहब ने LGBTQI की बात की, या इस तरह की और कोई चीजें, सूद हो गया मिसाल के तौर पे, जब यहाँ पे clash आ रहा होता है ना, तो then you sort of like you know compromise on many other things. मतलब for example आप वहाँ पे कमा ज्यादा रहे होंगे, you'll be earning much better in the West. यहाँ पे थोड़ा सा इनिशियली कमाई थोड़ी सी उस तरह की नहीं होती, राइट? तो इसलिए मतलब थोड़ा सा दिल मजबूत करना पड़ता है। वहाँ पे सिस्टम्स आर लाइक यू नो ऑलरेडी वर्किंग एंड दे आर वेरी स्मूथ। यहाँ पे सिस्टम्स वैसे नहीं है, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो ये चीजें जो है जहन में रखनी है, बट देन आई थिंक द biggest thing to keep in mind is the big picture on why you choose to move back to Pakistan in the first place. That will be your only anchor, at least for the first 2 years. Right. पहले 2 सालों के लिए आपका कम से कम सिर्फ यही एंकर होगा कि बाबा, क्योंकि आपको हर बंदा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना एक तो पाकिस्तान में मतलब एक वो डिस्पोंडेंसी का जो कोशेंट है वो इतना हाई हुआ है कि हम एक पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव करके सोचते हैं,
ठीक है। वो मुनीर नियाजी कहता है ना, अच्छा है देखिए मतलब हमारे अंदर मतलब खामियां भी बड़ी हैं, लेकिन वो मुनीर नियाजी कहता है ना कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, यू नो। तो वो वाली बात है कि मतलब कुछ बाहर ने भी नहीं छोड़ा हमें, लेकिन कुछ हमें भी मतलब कुछ जरा ज्यादा ही जो है ना मतलब कंप्लेन एंड क्रिप करने की आदत जरा ज्यादा एक नेशनल लेवल पे हो गई है। तो डिस्पॉन्ड तो अक्सर लोग जो आपसे आके हाथ मिलाएंगे ना, वो सबसे पहले आपको कहेंगे यार तुमने क्या किया, ये यू नो तुम क्या कर रहे हो, और दिस इज लाइक इनसेन जो तुमने किया। फिर वो उससे आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, कहेंगे यार तुम बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। मतलब आप यकीन नहीं जानेंगे कि यू नो हत्ता कि आपको जो बेचारा मतलब वो शॉपकीपर जो बैठा होगा वो भी ये कहता है आप जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये आप मतलब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे कौन आता है। अब वो वाली बात है कि मतलब यू नो आपने अपना एक फिलोसॉफिकल और आपकी जो अपनी माइंड की फिलॉसफी है, फिर उसके बाद आपके ऊपर जो उसका एटीट्यूड डेवलप हुआ, यू हैव टू एंकर ऑन दोस थिंग्स, यू नो। कई दफा ऐसा होता है कि यार मैं सोचता हूँ कि यार वहां पे मतलब ये चीज कितना स्मूथ होती थी, ये पैसे कितने अच्छे आ जाते थे, यू नो। यहाँ पे तो यू हैव टू स्ट्रगल ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो नहीं, उस पे वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया कि आपका वाई, आपका पर्पस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, एंड देन यू नीड टू स्टिक टू इट कि यार ये तो मुझे मेरे साथ एग्जैक्टली ये, मैं जब मिडिल ईस्ट से वापस कुवैत से वापस आ रहा था तो उस टाइम पे मैंने इसी तरह किया था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप के लिए मतलब किया था, प्रोसेस वगैरह ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था सारा, आइल्स वगैरह भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर देन बस वही कुछ सोच बदली, सारा कुछ हुआ और मैं इधर आ गया। तो सबसे पहले जब मैं इधर आया ना, मैंने दफ्तर ज्वाइन किया, तो यहाँ मुझे आके सबसे पहले पूछते थे अच्छा यार आप वहां से आए हैं। तो पहले तो जो बाहर से आया होता है तो जनरली लोग बड़ा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस बंदे से ना कि यार ये तो जो बाहर पता नहीं क्या करके आ गया जैसे ना। और फिर उसके बाद ये अक्सर ये होता था कि अच्छा यार वहाँ करेंसी की क्या आजकल करेंसी क्या है वैल्यू। तो वो जाहिर है जब मैं बताता कहते यार आप फिर पाकिस्तान क्यों आ गए यार, तो आपको तो क्योंकि नेचुरल प्रोग्रेशन जो थी ना मिडिल ईस्ट से, मुझे जब सारे लोग वहां थे वो यही थी, या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, इस तरफ जाया जाए, यूएस जाया जाए। मैं वापस आ रहा था तो लोग मुझे ये कहते थे कि यार मतलब क्या हो गया ऐसे क्या कर रहे हैं आप। ऐसे आपने वो और वही जो आपने बात शुरू में की ना कि आप थोड़ा सा फिर खुद भी थोड़ा शेकी होते हैं बाज़ दफा कि यार पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया, सारे उधर जा रहे हैं मैं इधर आ गया हूँ। तो और फिर वो अगला सवाल ये होता है यार आपने बच्चों का नहीं सोचना, बच्चों का फ्यूचर, आप इधर आ रहे हैं तो वो क्या चीज होगी। बच्चों तो ही का तो सोचना है, इसलिए तो इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन। एग्जैक्टली। एक्चुअली इसमें एक चीज ये भी जरूर है कि जैसे कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, जो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना वो लोग करेंगे जो कभी बाहर रहे नहीं, ठीक है। तो आई वुड एडवाइज एनीबडी हुज कमिंग हियर to find a group of like-minded people who are generally from the same background के मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कि बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि उसकी ये वजह नहीं है कि वो कोई मतलब कोई आसमान से टपके, लेकिन ये है कि जो उनकी अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और लर्निंग्स हैं, they're aware of those things probably a bit more than the ones who are living here. जैसा यहाँ के लोग, और ये नहीं मैं कह रहा कि यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करें, बिल्कुल करें, यहाँ के लोगों से जो लर्निंग है और how to navigate things is much more than what you will learn from people who've lived obviously outside. तो वो तो आपने definitely करना ही करना है, but when you're actually sticking to your anchor, then you have to like get into that group of people who have had a similar, who share your experiences overseas as well, मतलब who know what the overseas is like. तो वो चीज मतलब मेरे ख्याल से शायद हेल्प करती है। इसमें मुझे लगता है एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इक्वेशन में जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, क्योंकि जाहिर है हम अपनी यूथ में होते हैं, सारा कुछ होता है, बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं। इसमें अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा जाता। बच्चों के बारे में तो एक नेचुरली आप सोच रहे होते हैं ना कि यार ठीक है इसका फ्यूचर है, इसने पढ़ना है, सारा कुछ करना है, लेकिन व्हाट अबाउट द पेरेंट्स, जो कि अब मैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है बाज़ दफ़ा, मैं जिधर रहता हूँ इधर बैरिया टाउन में, यहाँ काफ़ी सारी लेन में मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, बच्चे सारे बाहर हैं। अब ठीक है वहां से आप पैसे भेज देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा बड़ा कुछ है। मतलब अभी वसीम भाई अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर कर रहे थे कुछ अर्से पहले, इनकी वालदा बीमार थी और रमजान में जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा, ये उनके पास बैठते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ये चीज तो मिस हो जाती है हमारे से बहुत। और इसका एक अलग ही एक वो है। असद ये जो आपने बात की है ना, हमारे बच्चों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ये हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पेरेंट्स हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज जो वो एक होलिस्टिक कवर देते हैं ना बच्चों को, वो शायद पेरेंट्स भी नहीं दे सकते। दे वो प्रोटेक्टिव एज पेरेंट्स भी, लेकिन वो they've seen us grow, and they have a more holistic and a more realistic understanding of a child's psychology. और अच्छा, एक तो ये मैं इसलिए ये बात की आपकी बात से फॉलो करते पेरेंट्स के ऊपर कि ये असल में हम पेरेंट्स को हेल्प नहीं कर रहे होते, हमें पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। पेरेंट्स तो मतलब फिर भी बेचारे पल जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, वो तो मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजार ली है। हमें और हमारे बच्चों को उनकी ज्यादा जरूरत है। वो जो उनका कनेक्शन होता है ना, द ग्रैंड पेरेंट विद द ग्रैंड चाइल्ड हेल्प्स द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प द ग्रैंड चाइल्ड। आप उसके अंदर नहीं होते, एंड दैट इज अ वंडरफुल कनेक्शन दैट वी ब्रेक बाय आवर न्यूक्लियर फैमिली। बस वसीम, and this is probably one of the most unfortunate parts of moving abroad. कोई मेरे से पूछे, because I lost my parents. ये वाली चीज जो है, it's like it's just मैं पर्सनली जाती तौर पे ये बिलीव करता हूँ कि यार हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा जुल्म है। मैं मतलब ये चीज the way we are actually forced to move away from our parents, not even forced मेरे ख्याल से, या ये जो जनरल कोर्जन है ना कि यार बाहर जाओ, बस बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर मतलब जन्नत है। मतलब मेरे ख्याल से बाहर जाना चाहिए, बाहर से आप सीखते बहुत है, लेकिन बाहर जाए वापस आने के लिए। ठीक है, और वो लर्निंग्स इंप्लीमेंट कर, मेरा ये ख्याल ये है, बाहर कोई जन्नत नहीं है और ये जगह कोई दोज़ख नहीं है। वहां के अपने चैलेंजेस हैं, यहाँ के अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है, लेकिन जो ये जुल्म होता है ना, मेरे ख्याल से this is I'm like very blunt about it, so that whoever listens to this, उनको पता समझे, मतलब ये एक जुल्म, मतलब अक्सर औकात, मतलब बाज़ औकात, इनफैक्ट अक्सर औकात मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि हाँ बेटा जा, बट वो जो जा होती है ना, that's not really मतलब वो आपका भला तो सोच रहे होते हैं, लेकिन मतलब वो बेचारे करें भी क्या। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ नहीं मेरे लिए वो बाहर ठीक है, अगर नहीं मतलब नहीं, वो ये तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है ना कि हाउ वी टेक इट। मतलब ठीक है, अगला आप देखें, एज अ पेरेंट मैं भी चाहूंगा यार मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छी बेहतरीन चीज जो मैं कर सकूं, यार अगर मुझे लग रहा है फायदा लग रहा है कि यार ये बाहर जाता है, कहीं जाता है, तो इसका फायदा होगा, मैं बेसिकली उसका फायदा देखूंगा, अपना नहीं देखूंगा। वो तो मैं अपने आप को कुर्बान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये फिर बच्चे के ऊपर है या हमारे ऊपर है कि यार आप फिर पेरेंट्स के बारे में किस तरीके से सोचते हैं। क्या आप उस जाने को जाना मान लेते हैं या आप जिम्मेदारी का एहसास करते हैं? और वही ना, और अक्सर औकात हम लोग बड़े प्लान सोचते हैं कि यार अच्छा इतनी सी देर के लिए जाऊंगा, सिर्फ इतने अरसे के लिए जाऊंगा, बट लाइफ इज टू शॉर्ट, यू नेवर नो। और वो वही वाली बात आ जाती है कि वो हज़रत अली का एक कौल है, फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। तो इंसान के इरादे और मंसूबे होते हैं, और हरफ अव्वल और आखिर जो होता है वो ऊपर वाले का होता है। So we don't know, what happens during these years. हम लोग कहते हैं it's a connected world, अभी चीजें बदल गई हैं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं रहता। That thing is not there. So like, may Allah subhanahu wa ta'ala, मेरी हमेशा अल्लाह ताला से अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम अल मुस्लिमीन, और उस अंसुर अल इस्लाम अल मुस्लिमीन में ये है कि अल्लाह बख्शे, मेरी माँ जी ये कहती थी कि कब वो दिन आएगा कि जब हम लोग अपनों से ना बिछड़े। Because when we are actually like, this is something that's happening all over the Muslim world. Yes. आप ये देखें, मतलब पाकिस्तान से कितने लोग चले जाते हैं बाहर, कितने बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये मिडिल ईस्ट में सारे एवरीबॉडी, मतलब पहले मिडिल ईस्ट में ट्रेंड नहीं होता था, अब मैं मतलब रिसेंटली इराक में था महीना पहले, तो मैं देखा वहां पे बहुत सारा ये ट्रेंड शुरू हो गया। पीपल आर जस्ट लीविंग, मतलब इन droves, तो एक डेस्पोंडेंसी सी ड्राइव हो रही है, ये सारी चीजें चल रही। अल्लाह ताला करे कि वो दिन आए कि जब हमारे बच्चे जो हैं उनको ऐसा ना लगे कि यार मतलब तरक्की सिर्फ बाहर जाने में, वो अपनी ही कम्युनिटीज में। Can I play the devil's advocate here?
Yeah, sure. तो पेरेंट्स क्यों नहीं आपके साथ चले जाते बाहर? देखिए, एक जब आपने इतना वक्त एक गुजार लिया होता है और एक आपकी एक वैल्यू चेन एक जगह पे बन चुकी होती है, ठीक है। अब मिसाल तौर पे एक पेरेंट है, वो कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, वो टीचर, मिसाल माय मदर वाज अ टीचर, राइट, एंड her students were her fans. She had literally a fan following because of the way she taught. She was very passionate about what she used to teach. अब उनको कहना कि माँ जी आप ये सब कुछ छोड़ें और आए आप मेरे साथ गोरों में बैठे, ठीक है। द कल्चर चेंजेस ट्रेमेंडसली। तो वो कहते हैं कि पुत्र तू जा, ठीक है, मेरी दुआएं हैं तेरे साथ, मैं यहाँ ठीक। इसमें वसीम भाई जो आप पॉइंट कह रहे हैं ना, इंटरेस्टिंगली मेरी दफ्तर में किसी से डिस्कशन ऐसी हो रही थी, एक कोलीग से, उनकी वालदा और उनके फादर जो हैं वो उधर लाहौर में होते हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज होता है उनके लिए, ज़ाहिर है आना जाना काफ़ी लगा रहता है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट इधर आ जाएं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी इस तरह से बेहतर है कि वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सारा कुछ ना। तो उन्होंने कहा यार असद मसला पता है क्या है, मैं तो उनको बहुत कहता हूँ मेरे पास जगह भी है, सब कुछ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी वालदा है ना, उनको सुबह सुबह एक होता है ना कि सारी उम्र लाहौर में गुजारी, वो जो सब्जी वाला भी आता है ना, उधर भी एक अटैचमेंट है। जो कोई और गली में से गुजरता है, आवाजें निकल रही हैं, वो कोई ना कोई आ रहा है, कोई छुरी तेज करने वाला आ रहा है, कोई और आ रहा है, तो एक जो उनकी एक सेटिंग हुई हुई है ना एक जगह पर, वो मैं सेटिंग सारी जब हटाऊंगा ना तो वो सेटल नहीं हो पाएंगी। और वो बड़ा सही पॉइंट है। इचरा से आप डीएचए भी ले जाओ ना तब भी यही होता है। एग्जैक्टली। अब ये तो वो है ना कि अपने कल्चर में यहाँ जो उमर भाई बात कर रहे हैं कि अब यहाँ से अगर आप ले जाके बिल्कुल ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाएं जहाँ हर बंदा, लैंग्वेज का भी फर्क है, कल्चर का भी फर्क है, हर चीज डिफरेंट है, तो वो दे डोंट गेट सेटल्ड। और खास तौर पे उम्र के इस हिस्से में we did this with my mother what 2 3 4 4 years ago, 4 5 years ago, when she was much better. She was alhamdulillah, and my brother was in Dallas. तो हम अम्मी 3 महीने के लिए उनके पास चली गई, 2 महीने बाद वापस आ गई। क्या नॉनसेंस थी, मुझे तुमने पता नहीं कहाँ भेज दिया, उधर अजान की आवाज़ नहीं आती थी, मैंने नहीं रहने ऐसी जगह। एंड द एंटायर टाइम शी वाज देयर, उनका एक खौफ था और कांस्टेंट परसिस्टेंट खौफ था, कि मैं अगर यहाँ मर गई तो मुझे इधर काफरों में दफना देंगे। ऐसा ही है वो वही वाली बात है कि मेरे जहन में बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात, शायद जो अम्मियां होती हैं वो एक ही माइंडसेट की होती है। माय मॉम इज व्हेन शी विजिटेड दैट प्लेस, शी वाज लाइक नहीं मुझे कुछ होता है तो मैं मतलब यहाँ पे क्या, बिकॉज़ अब ये भी जमीन है, अर्दुल्लाह वासिआ, ये भी अल्लाह की जमीन है। नहीं मैंने अपने लोगों में मतलब आई वाज स्टार्ट, मतलब जैसे उनके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब जान के अंदर जान, when she went to the airport ना, the Sydney airport में वो जब वापस जा रही थी तो मतलब it was obviously a sad time for us and our grandkids, so they were seeing her off. अच्छा, एक चीज में देख के बड़ी खुशी हुई, वहां पे ना 2-3 हजरात जो थे ना, वो उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी और वो उन्होंने वो जो पश्तो स्पीकिंग लोग जो पगड़ी नहीं पहनते कहती वो रहे लोग, हालांकि वो नॉट पश्तो स्पीकिंग, बट जस्ट दैट एसोसिएशन, वो आप वाली बात के वो जो वो छुरी तेज करा लो और वो करा लो, कि जो एक पूरी एक एसोसिएशन होती है ना, जो कल्चरल बाइंडिंग होती है कि ये मेरे लोग, she got so happy when she saw that. So I think it's unfair for us to drive our parents and say, whatever you've organically grown up with, give that up now for us again. They've already given up their everything for all of us when we were growing up. तो अब इनके वो थोड़ा सा वो होता है, बस अल्लाह ताला खैर रखे, सबके पेरेंट्स को अमान में रखे, जो चले गए उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। और ये है कि इंशाल्लाह वो वक्त लाए कि जब हमारे सिस्टम्स, खास करके एजुकेशन सिस्टम्स और इकोनॉमिक सिस्टम्स इस तरह के हों कि हम लोगों के लिए सिर्फ बाहर जाना ही वाहिद ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल। एंड मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, इस मुल्क के अंदर अगर सिर्फ जस्टिस मिल जाए ना, सिर्फ जस्टिस मिल जाए, so that common man has recourse to the law, no matter who it is, whether it's सामने आपके ऑपोजिशन में पॉलिटिशियन है, कोई पुलिसमैन है, आर्मी वाला है, कुछ है, you get justice. There is nothing stopping this place. Alhamdulillah, it's such a land of opportunity. Justice is key and pivotal anyway जी, ये मतलब इसके बगैर तो कल ही बल्कि I was at this game, a football game, and there was somebody who was very close to the Pakistan football team,
कह रहे कि यार इन तमाम प्लेयर्स में 11 में जो है सिर्फ 5 जो है ना वो मेरिट पे हैं, बाकी सारे पर्ची तो कल जो एक वो हुआ तो ये इनजस्टिसेस है, मतलब मेरिट की धज्जियां जो उड़ी हुई हैं हर जगह। क्रिकेट में भी कल इस तरह से ही हुआ कुछ करीबन तकरीबन, वी सॉ व्हाट हैपेंड वाज डिफिकल्ट। तो ये चीजें जो अब सोचो अनफॉर्चुनेटली सोचो इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड एंड यूएसए के अंदर अब रन रेट पे आ जाएगी कि भाई हम जाते हैं कि नहीं। ये तो You can expect this from the Pakistani team. yeah. Anything can happen. Yeah, so like इंशाल्लाह मतलब मेरिट जस्टिस ये चीजें आएंगी और होपफुली उम्मीद पे दुनिया कायम है। और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स नजर आते हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं आगे से, अच्छा, लेकिन फिर भी लेकिन इसके अंदर जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी है ना, वो फिर वर्ल्ड जस्टिस हमें मिले वो भी नहीं मिल रहा। आप देखें ना पूरी हाँ, दुनिया के अंदर क्या, गजा के अंदर क्या कर रहे हैं वो, और धड़ल्ले से करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, हाँ, you know, ऐसे ही and nobody can do anything. ऐसे ही है। अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला। अल्लाह मुस्तआन। ऐसे ही है, ऐसे ही है। Astaghfirullah. Yeah, so this is basically Inshallah, wonderful, very wonderful, fruitful wonderful. discussion. Yes, Alhamdulillah. I'm so काफी टाइम now. भी आपका लिया हमने. हाँ, Maybe on the contrary, I really enjoyed every moment of this discussion, and inshallah, I hope that you guys and myself, we can continue to benefit other people who want to get onto the same boat, inshallah. And Allah keeps us steadfast with all our good deeds for ourselves and for our wider community as well. Yes, and may Allah make the community grow and become stronger. And Ameen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ameen. Inshallah. Ajma'in. Thank you very much, Omar. Thank you very much for your time today.